A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you are enjoying the online classes and praying for the schools to be reopened soon. Right. Yesterday we have started a new chapter of our microeconomics, that is theory of supply. We have discussed the meaning of supply and we have discussed the difference between stock, supply and sales. Then after we have completed a topic, determinants of individual supply, we have discussed how different factors affect the individual supply of commodity. We have discussed the relation between supply and own price, supply and price of related goods, supply and technology, supply and prices of factors of production, supply and policy of government. We have already covered these points. Now today we will discuss few determinants of market supply. I have given you a task to read this part by yourself. I hope all of you have done. Now you are going to explain these determinants. These are basically these 3 points affects the market supply of a commodity. Market supply means supply by all the firms of the market. मार्केट की सभी फर्म्स मिलके टोटल मार्केट में जितना सप्लाई करने वाली है वो मार्केट सप्लाई है. तो मार्केट की सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले कुछ फैक्टर्स है. जैसे मार्केट की डिमांड को डिटरमाइन करने वाला सबसे एक बड़ा फैक्टर था पॉपुलेशन साइज. वैसे ही यहाँ पे है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. Anyone who can explain the point, number of firms in the market, how it affects the market supply? It is quite simple. You can easily give the answer. Give it a try. Very good, Janvi. You can unmute and speak. मैम अगर ज्यादा फर्म्स होंगी तो फिर वो ज्यादा सप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट की बात नहीं करनी. नो, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट प्रॉफिट, बट यस योर पॉइंट इज करेक्ट. नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी यानी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगी तो उससे मार्केट की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. दैट्स इट. यू हैव टू राइट इट ओनली अप टू दिस पार्ट. और नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगी. इज इट ओके? नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज तो मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. हम सिर्फ सिंपल सी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फर्म्स का और मार्केट सप्लाई का क्या लिंक है. तो नंबर ऑफ फर्म्स का और मार्केट सप्लाई का एकदम डायरेक्ट लिंक है. जितनी ज्यादा फर्म्स होंगी मार्केट में उतनी ज्यादा सप्लाई होगी और जितनी कम फर्म्स उतनी कम सप्लाई. नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस. Now just imagine yourself as a supplier and just give me the answer. Imagine yourself as a supplier. Okay. Let us take an example. You just imagine yourself as a supplier of ball pen on which MRP is not written. Now current price of ball pen is ₹10, but it is expected that in upcoming months the prices will rise by ₹5 and it will become 15. Now there is an expectation of future rise in price. What will you do with current supply? आप करंटली अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? जल्दी से बता दीजिए अनम्यूट करके, डायरेक्टली अनम्यूट करके. डिक्रीज करेंगे. जस्ट बिल्कुल हम डिक्रीज करेंगे. क्यों डिक्रीज करेंगे? बिल्कुल सही, डिक्रीज करेंगे. वेरी गुड. हम क्यों डिक्रीज करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है. So if we are expecting a future rise in price, then we will just reduce the current supply, current market supply. And if we are expecting a future fall in price, मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो currently I will be increasing the supply. यही सिंपल सी बात आपके इस पॉइंट में लिखी हुई है. ठीक है, देखिए पॉइंट आपको बुक से बता देती हूँ एक बार. ये देखिए, if sellers expect a rise in price in near future, then current supply will decrease. ठीक है, क्यों? ताकि हम फ्यूचर में ज्यादा सेल करें और वाइस वर्सा. अगर उनको लग रहा है फ्यूचर में फॉल होने वाली है तो करंट सप्लाई वो इंक्रीज कर देंगे. Now these are the things where you need not to just learn the points from your book. You are supposed to imagine the situation. You have to keep yourself in the situation and you have to take a rational decision. ठीक है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि क्या होगा. नेक्स्ट देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. कोविड-19 में वेजिटेबल्स कॉस्टली मिली थी. रीजन ये था कि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स अवेलेबल नहीं थे, तो विलेजेस से अर्बन एरियाज तक फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते तो वो सप्लायर कम सप्लाई करना चाहेगा. और अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीन्स प्रॉपर वे में डेवलप हो जाते हैं
तो वो मार्केट की सप्लाई को इजी बनाएंगे, मार्केट में सप्लाई को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर वेल डेवलप्ड, देन अ प्रोड्यूसर विल बी एबल टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। वो आराम से सप्लाई कर पाएगा, उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसका एक रिवीजन गिवन है आपको। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई, जिसमें से जो मैं टिक कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली मार्केट के लिए होते हैं, और बाकी 3 आर द पॉइंट्स व्हिच अफेक्ट ओनली मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, एंड द अबव 6 पॉइंट्स आर कॉमन फॉर मार्केट एज वेल एज इंडिविजुअल। वी हैव कंप्लीटेड दीज 9 पॉइंट्स। मेक श्योर कि ये 9 के 9 पॉइंट आपको अच्छे से समय का मूवमेंट और शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। डिमांड वाले चैप्टर के बाद आपको पता होगा कि मूवमेंट और शिफ्ट में डिटर्मिनेंट्स का ही टॉपिक आता है। सो एवरीवन, आई एम गिविंग यू 1 minute, have a look on each and every point given in this box. You can immediately raise your hand and ask it. आपको पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। पिक्चर मस्ट बी क्लियर in our mind that when price increases, quantity supplied will also increase. Okay, next one, price of other goods. हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अदर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हम अभी करंटली 33 हम अभी करंटली सप्लाई को कम प्रॉफिट होगा। तो ऐसी पिक्चर इन सभी पॉइंट्स को लेके आपके माइंड में क्लियर है या नहीं है, ये क्रॉस चेक कर लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In case of any problem, you can raise your hand and you can ask me. Yes, Pankaj beta, you can unmute and प्राइस speak. इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। A normal good, first point. हाँ, यस Beta, because we are expecting a higher profit on our commodity. Supply is basically the desire to sell, right? What we desire to commodity is increasing. तो आप बताइए, आपकी डिजायर ज्यादा सेल करने की होगी या कम सेल करने More. की? More. बस वही पॉइंट है। It is not actual sales of producer. Actually आप more नहीं, desire to sell more of the commodity. Okay, anyone else, any doubt? Properly analysis कर लीजिए, कहीं भी आपको लग रहा है तो आराम से पूछ लीजिए। No doubts? That's great. अगर सच में नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगी। The functional relationship between demand and its various determinants, वही सप्लाई फंक्शन है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन सप्लाई फंक्शन शो करता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी सप्लाइड और उस सप्लाई को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स, उनका फंक्शन। Now individual supply function is the relationship between supply and the factors affecting supply for a commodity. ठीक है, आगे आप लिख दीजिए for an individual supplier of a market बन जाएगा। फैक्टर्स देख लीजिए, समझ हमने लिया है, सिर्फ इक्वेशन रह गई। Sx means supply of good X is the function of Px यानी price of the commodity, Po price of production, St state of technology, T the taxation policy and G goal of firm। G goal of firm। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे सप्लाई के फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है। तो देखिए इसकी इक्वेशन में 3 चीजें ऐड हो जाएगी, N, F and M, number of firms, then after we have discussed the future expectation, communication. These are the factors which affect the market supply of commodity. यहाँ तक आपकी 4 important definitions cover हो गई है। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन की भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। Okay, now raise your hand for the explanation of next part. Supply schedule. What is a supply schedule? Let me know. और कौन supply schedule बनाना चाहिए? Be quick, everyone. I'm expecting more hands. I'm expecting all of you to give the answer. Be quick. डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है, टेस्ट भी दिया है, अच्छे अच्छे नंबर भी लेके आए हो, तो आप करण एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई शेड्यूल। व्हाट इज इट? मैम सप्लाई शेड्यूल वो होता है मैम कि मैम अलग अलग लेवल, मैम जो प्राइस होता है उसके अलग अलग जो रेट होती है उसके ऊपर कोई बंदा बिल्कुल, कैन वी सिंपली कॉल इट अ टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। एक ऐसी टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को शो करते हैं। चलिए भाई, लक्ष्य मोदी बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। लक्ष्य मोदी, बी क्विक। क्या हो गया लक्ष्य को? लक्ष्य मोदी बच्चा अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट हैपेंड? प्रवीण अग्रवाल अनम्यूट योरसेल्फ। प्रवीण अग्रवाल अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा क्या प्रॉब्लम आ गई है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? यस, कृष्णा अग्रवाल बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, beta. Hello. Tell me, Yes, if you are a producer, you are a supplier, then with the increase in price, will you want to supply more or less?
Yes, ma'am. If you are a supplier and 30, suppose at price of rupees 10 you were willing to sell 100 units. Now beta you have to tell me कि जब ये प्राइस 10 से 20 हुए आप ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे या कम? ज्यादा मैम. ज्यादा. तो क्या यहाँ बिल्कुल. चलिए बेटा और आगे बढ़े. प्राइस 20 से 30 हुई. नाउ 130 मैम. 130 or we can say 140. Again we will be willing to supply more. Okay beta, very Thank you, good. ma'am. You can mute yourself. So everyone have a look. I have drawn an individual supply mind that there is a positive or direct relationship between price and quantity supplied. प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी. तो जब भी आप सप्लाई शेड्यूल बनाएंगे तो आपको दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करना है. अगर बात ही करनी होगी, अगर मैं यहाँ पे प्राइस लूंगी 10, 8 and 6, तो मुझे मेरी क्वांटिटी भी रिड्यूस ही करनी होगी. मैं ले सकती हूँ 150, 100 and 50. So I have drawn an individual supply schedule in front of you. We have discussed the meaning of supply schedule. What means? Various quantities of commodity that producers are willing to offer at various possible prices. अलग अलग prices पे वो कौन कौन सी quantity sell करना चाहते हैं, इसको टेबल में बता दिया तो वो supply schedule. Supply schedule में एक simple सी definition बोल रही हूँ जिसको आप सुन सकते हो, आपको याद हो सकती है. Individual supply schedule is a table showing the relationship between price and quantity supplied. A table showing the relationship को एक साथ explain करती है, वो individual supply schedule है. एक hypothetical यानी एक imaginary example आपको दिया हुआ है. आप अपने लेवल पे कोई भी टेबल बना सकते हैं. प्राइस गिवन है 1 से 5 तक, ये कंटिन्यूअसली. तो ये एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है जो बता रहा है दैट देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. चलिए आगे बढ़िए. मार्केट सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज इट? ये सप्लायर्स कितना ऑफर करना चाहते हैं उसको शो करने वाली एक टेबल है. चलिए भाई, कौन मेरे साथ यहाँ पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल बना सकता है? बुक वाला नहीं, कोई भी इमेजिनरी मार्केट सप्लाई शेड्यूल आई वांट टू ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू टू फिक्स अप द क्वांटिटीज. I am taking here supplier 1, supplier 2 and supplier 3. And here I am taking market supply. Okay, now help me in setting the prices. Very good Varun beta. मैम मुझे इंडिविजुअल वाले में थोड़ा सा डाउट था. हाँ जी बेटा बताइए. मैम उसमें जब मतलब वो इंक्रीज हुआ तो प्राइस भी, क्वांटिटी भी क्यों इंक्रीज हुई बेटा मैम? क्योंकि अगर आप एक सेलर हो तो आप ज्यादा सेल करना चाहोगे ना. हम यहाँ पे सप्लाई का मीनिंग समझ रहे हैं कि एक इंडिविजुअल सप्लायर कितनी क्वांटिटी है और डेयरी मिल्क की प्राइस इंक्रीज होने लगती है, तो इंक्रीज इन प्राइस के साथ आप डेयरी मिल्क ज्यादा ऑफर करना चाहोगे या कम? मैम ऐसे तो ज्यादा करना चाहेंगे, पर अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो हम ज्यादा लोग कर कम भी नहीं तो खरीदेंगे. बिल्कुल. इसके लिए मैंने आपको कल की क्लास में जो कंफ्यूजन आ रहा है वो 100% सही है कि हम चाहेंगे ज्यादा सेल करना बट कंज्यूमर थोड़ी ज्यादा परचेज करेंगे. राइट? आपको यही लग रहा है कि कंज्यूमर ज्यादा परचेज नहीं करेंगे तो ये तो डिक्रीज होना चाहिए था. बट हियर वी आर टेकिंग क्वांटिटीज. ये एक्चुअल सेल्स नहीं है. मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो, मेरे पास जो अवेलेबल गुड है वो है स्टॉक. जितना मैं मार्केट में सेल करना चाहती हूँ वो है सप्लाई. सेल्स अगर हम प्राइस और सेल्स को लेते तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होने से हमारी सेल्स डिक्रीज हुई होती. बट हम ले रहे हैं प्राइस और सप्लाई को, यानी प्रोड्यूसर की इच्छा क्या है. तो उसके इंटेंशंस ये होते हैं दैट विद द इंक्रीज इन प्राइस आई वांट टू सप्लाई मोर एंड मोर इन द मार्केट. इज इट ओके? यस मैम. Is it okay beta? Okay, all right. चलिए, now who will help me in completing this table? Be quick, participate. Beta, unmute and tell me any prices. Yes, ma'am. And the price of the Yes. commodity. Yes, price of the commodity. What can I write in this column? This one. Ma'am, 5. Wait for a second. I have used the eraser और मैंने erase कर दिया गलती से. 10. 10. 15. Okay, all right. 20. And 20, ma'am. Okay, very good, Neil. Now tell me the quantity by supplier A. चलिए दिव्यांश बेटा आप बताइए क्या क्वांटिटी हम ले सकते हैं by quantities which seller A would be willing to offer? मैम 50. 50, okay. Then after 50? 60. Okay. 70, 80. Then 70 and 80. चलिए दिव्यांश ने बता दिया है कि वो अलग अलग प्राइसेस पे कितना सेल करना चाहेगा. Okay, now गजल आएंगी. गजल बी क्विक. यस मैम. यस बेटा, अगर आप सप्लायर हैं, यहाँ पे ये दिव्यांश की सप्लाई है, आप बताइए आप सप्लायर है तो आप कितना कितना सेल करना चाहेंगी? आवाज सही से नहीं आ रही. ओके बेटा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ. तोशिता जैन. तोशिता बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. तोशिता जैन बी क्विक. तनिष्का बागड़ी अनम्यूट योरसेल्फ. तनिष्का बागड़ी. चलिए क्लास के बाद बात करते हैं इन सबसे. यस तनिष्का, अगर आप एक सप्लायर, वेट फॉर अ सेकंड करण. तनिष्का बेटा आपको खुद को एक सप्लायर इमेजिन करना है और आपको बताना है इन अलग अलग प्राइसेस पे आप कितना सप्लाई करना चाहेंगे. बी क्विक.
Yes, ma'am. Ma'am, चलिए 20. कितना? Mm, Be a bit louder. Take any figure, beta. yes, ma'am. 20, 20. Okay. 20, 40, Okay. 60, Okay. And 80. 80. Yes. Okay. करण गुप्ता जब तक बता रहा है तब तक जैसे करण बताता जा रहा है आप मार्केट सप्लाई कैलकुलेट कर लीजिए और फटाफट से मुझे मार्केट सप्लाई की वैल्यूज बता देना। हाँ जी करण बताइए बेटा आप कितना कितना सप्लाई करना चाहेंगे? मैम 30, 30, 47 40, मैम इतनी इजीली 47. कर लेंगे मार्केट Okay. सप्लाई कैलकुलेट। 62, 62. Okay. 89 करण बोल रहा है कैलकुलेशंस मेरे दोस्तों को करनी है, एकदम इजी इजी क्यों रखूं भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन लाते हैं। चलिए भाई बढ़िया बात है। ओके वीक में क्या क्या 100. ऐड करना होगा? 100. वेरी गुड। क्या क्या ऐड किया मैंने इन तीनों को? 147 147. 192. नेक्स्ट 190. 192. 249. 239. 249. 49. 239 आ रहा है, 49. 249 आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया लगा भाई, कितना क्विकली आप लोगों ने मार्केट सप्लाई बताया। व्हाट वी आर सपोज टू डू, जब हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाना है, हमें एक प्राइस लेनी है और हमें प्राइस के साथ रखना है सभी सप्लायर ज्यादा ऑफर करना चाहेंगे मार्केट में कब? जब प्राइस इंक्रीज होगी। ठीक है, विद द इंक्रीज इन प्राइस दे विल बी विलिंग टू सेल मोर। कंसेप्ट क्लियर रखना, विलिंग टू सेल मोर है, एक्चुअली ज्यादा नहीं सेल क्लास पता चलेगा कि ये और ये डायरेक्टली रिलेटेड है। पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। आपका होमवर्क है प्राइसेस को डिक्रीज करते हुए एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल। देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बाद में आता है आपका सप्लाई कर्व। क्या आता है? सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड कर्व था वैसे ही सप्लाई कर्व है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज सप्लाई कर्व। जब मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करती वो बन जाता है सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व होगा अपवर्ड स्लोपिंग क्योंकि ये शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप को। देखिए मैं आपके सामने आपको बना के एक्सप्लेन कर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ at this price producer was willing to offer this quantity O, P and Q. in case prices increases increase हो जाएगा तो ये आपका नेक्स्ट टच हो जाएगा। एंड इन केस प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस फॉल होती है तो वो क्वांटिटी भी कम सेल करना चाहेगा, तो प्राइस के कम करते ही सप्लाई कम हो जाएगी। व्हेन इट्स स्लोपिंग, अगर आप ओरिजिन की साइड से ऑब्जर्व करें, यहाँ से ऑब्जर्व करें तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, वो शो करता है कि प्राइस इंक्रीज। अब ये आपको एक इंडिविजुअल सप्लायर के लिए भी बता के दिया हुआ है और मार्केट सप्लाई के लिए भी बता के दिया हुआ है। तो आराम से मेरे हिसाब से मेरे सारे स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट है कि वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व अलग अलग सप्लायर का लिया, जैसे करण गुप्ता ने सप्लाई को थोड़ा सा अलग अलग चेंज किया तो ये स्ट्रेट नहीं आके एक कर्व फॉर्म में आ गया, आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक आप सब पढ़ के रखेंगे। स्लोप ऑफ सप्लाई और होमवर्क। लॉ ऑफ सप्लाई इज नथिंग न्यू, आपको बहुत अच्छे से पता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको अच्छे से आता है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, वैसे तो इजी आता है। और अगर सप्लाई की बात करूं तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास। बताइए सब में थम्स अप इफ यस, बी क्विक। चलिए व्हाट आई कैन से कि चैप्टर्स तो ऐसे ही रहेंगे, आप थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिए, थोड़ा सा पार्ट आने लगेगा और आप एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, आप यहाँ तक रिवाइज करके रखिए, हम मिलते हैं कल की क्लास में। वन मोर इन्फॉर्मेशन, आपका अपकमिंग वीक में एक वीकली टेस्ट होगा और चैप्टर 2 आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। सो अलोंग विद दिस चैप्टर स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 of yourself. See you in the next class.